पार्किंसन डिजीज़ एक प्रगतिशील बीमारी है जो ब्रेन और नर्व्स के द्वारा नियंत्रित शरीर के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है। 60 ईयर अबोव और उससे अधिक होने पर ये बीमारी होती है, पर कभी कभी जेनेटिक के चलते कम उम्र पर भी ये बीमारी हो सकती है। तीव्रता व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर ओल्ड एज पार्किंसन यंग एज से ज़्यादा गंभीर होता है। ऑन एन एवरेज भारत में विश्व का 1/10 पार्किंसन मरीज रहते हैं। महिलाओं से ज़्यादा पुरुष प्रभावित होते हैं। ये बीमारी मस्तिष्क में डोपामिन की कमी के कारण होते हैं, जिसके परिणाम हमारी क्रियाशीलता या मूवमेंट पे होता है। I am Professor Ashok Kumar Malli, Head of the Department Neurology, Sri Ram Chandra Bhanja Medical College, Cuttack, Odisha. Unilateral presentation like unilateral tremor and difficulty in walking and maintaining posture. Classically, when you examine the patient will have a stooping posture and there will be loss of all associated movements like loss of hand movements. Walk like as if he is trying to catch up the center of gravity. So that is known as fascinating gait. The tremor is classically known as peel rolling tremor. Patient will have a mask-like face or expressionless face. There will be no expression, and the speech is classically monotonous. कौन ना? विष्णु चरण मेरा। घरा कोठी? लग रहा। Mayors and signs when you tap over the glabella, then the patient will have frequent blinking and diminished eye blinking will be there. Glabellar tap sign. Then cogwheel rigidity, lead pipe rigidity. There are many signs: tap sign positive, pull sign positive. So classical Parkinsonism and idiopathic Parkinsonism differentiation clinically is very easy. So one is tremor predominant, another there will be no tremor. Treatment response. So Syndopa response is very good in idiopathic Parkinsonism, and Syndopa response is not very prominent in Parkinson plus syndrome. There are age-old drugs like Syndopa, levodopa, carbidopa combination, salicylic, rasazyline, entacapone, adcapone. Many drugs are there, and for tremor, trihexyphenidyl, benzoxal, benzotropine are the drug of choice. When the patient is resistant to all the drugs and patient is having frequent on-off phenomena, then we may send the patient. The recent treatment guidelines are newer modality like deep brain stimulation. By deep brain stimulation, they are putting electrode in the subthalamic nucleus and globus pallidus interna. So, and there will be external pulse generator outside. So that acts like a battery. The battery life is 10 years. And recently, gene therapy has come to. Recent treatment trials are going on for gene therapy. I am Dr. P.P. Mohanty, Associate Professor Physiotherapy and Director SB Nirtar, Olorpur, Cuttack. Parkinson disease is a progressive disease. As the condition progresses, the medicine dose also one has to increase, and a time comes where even with the highest doses of medicine, it doesn't respond properly. Patient become bedridden. So to slow down the progression of the disease, to manage with minimal medication, the role of physiotherapy is very, very important. We educate the patient, we teach the exercise program and review the patient at regular interval. The role of physiotherapy is very useful in slowing down the progression of the disease and make the person fit to continue his activities of the daily living and to lead a independent life. पार्किंसन फीचर्स को कम करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को बढ़ाने और फटीग को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज घर में किया जा सकता है। इस तरीके से आपको घुटने को मोड़ना है, हाथों को सीधा रख के दाएं और बाएं की ओर ऑल्टरनेटली मूव करना है। पेट के बल लेट के दोनों हाथों को बाजू के सामने रखना है। कोहनी और बाजू को सीधा करके छाती उठाना है। हेड स्ट्रेट नीचे आना है। पेट के बल लेट के दोनों बाजू को साइड में रख के एक पाँव को उठाना है, 5 सेकंड रुकना है, फिर दूसरे पाँव को उठाना है, 5 सेकंड रुकना है। दोनों हाथ सामने फिर पीछे, सांस छोड़ना है, सांस लेना है। दोनों हाथों को साइड में रख के अपने शरीर को मोड़ के गर्दन को एक तरफ करके स्ट्रेच करना है ताकि आपको खिंचावट महसूस हो। अंगूठे के कपकपाहट के लिए इस तरीके से आपको दोनों अंगूठे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोनों अंगूठों को नाखून के ऊपर रख के पानी की छींटों की तरह उंगलियों को स्प्रेड करना है। उसी तरीके से बाजू और कोहनी को भी आगे की ओर करना है।
सीधे बैठकर आपको दोनों हाथों को इस तरीके से फ्लैप करना है। 1 2 3। स्टूल पे सीधा बैठना है। स्टूल के एक कोने में जाके अपने पहले पाँव को पीछे ले जाना है। थाइस पे रखते हुए अपने स्पाइन को पीछे करना है, स्ट्रेच करना है, सीधे होने हैं। पाँव को घुमाते हुए आगे ले आना है। स्टूल के बीच में रख के जिस पाँव को पीछे किया था उसी पाँव को आगे करके आगे की ओर झुकना है। सीधे बैठकर दोनों हाथ छाती की ओर, दाएं हाथ ऊपर बाएं पाँव ऊपर, बाएं हाथ ऊपर दाएं पाँव ऊपर। पहले पूरे सीधे बैठिए, एक हाथ को रेस्ट कीजिए थाइस पे, आर्म स्ट्रेच, लेग को स्ट्रेच, फिर वापस से नॉर्मल। दोनों हाथ बीच में रख के दाएं हाथ बाएं पाँव, बाएं हाथ दाएं। दोनों हाथों को बीच में रख के हाथ और पाँव दोनों को फैलाइए, बीच में रखिए। कुर्सी पे बैठ के थोड़े से पीछे जाके दोनों हाथों को ऊपर करके एक एक करके घुटने को, हाथों को छूना है। सीधे बैठकर नाक और पीछे वाले पॉकेट को ऑल्टरनेटली आपको पकड़ना है इस तरीके से। कुर्सी को सामने रखते हुए चलने की पोजीशन में, जिसे हम वॉक स्टैंडिंग बोलते हैं, उस पोजीशन में खड़े होते हुए आपको धीरे धीरे से आपको पहली हाथ ऊपर उठानी है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, फिर धीरे धीरे उसको नीचे करके दूसरी हाथ ऊपर उठा के स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। इसको आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। कुर्सी को सामने रखते हुए वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में पीछे वाले एड़ी और आगे वाले उंगली को इस प्रकार से आपको मूव करना है। कुर्सी को पकड़कर आपको वॉक स्टैंडिंग, जिसे हम चलने के पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन में आपको दोनों घुटने को मोड़ना है और सीधा होना है। रिलैक्सेशन के लिए आपको 2 तकिए की ज़रूरत है। एक तकिया जो आप पीछे रखेंगे, क्योंकि पार्किंसन में आपकी स्पाइन धीरे धीरे झुकने लगती है, तो उसको सीधे करने के लिए एक तकिया पीछे, दूसरे तकिया आगे, जिसमें आप दोनों पाँव तकिए के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे की ओर मुड़ी भी रहनी चाहिए दोनों पाँव। हाथों को फैला के आपको लंबी लंबी सांस अंदर और बाहर करनी है। पूरी तरीके से शरीर को छोड़ देना है और रिलैक्स होना है।